کہ آپ کو بکواس کرتے جائیں گے اور آپ کی بکواس کا جواب نہیں دیا جائے گا، جی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جی منہ توڑ دیا جائے گا، ذرا ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ سننے دیں ذرا۔ جتنے لوگ جماعت احمدیہ کے پیاری، جتنے لوگ جی آپ کو موقع دیتے ہیں طاہر صاحب، ذرا بات سننے دیں، آپ ہی کی بات ہے یار، ایک سیکنڈ ذرا دیں، نمبر ایک ذرا سنیں طاہر صاحب ایک بکواس کا سیکنڈ۔ لفظ استعمال کیا اس کو طاہر صاحب وہ میں واپس کرواتا ہوں، میں بکواس کا وقت ذرا سننے دیں بات۔ جی بابر صاحب ذرا بکواس پلیز کا لفظ بکواس کا جو ہے نا وہ مائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاہر صاحب کروا اگر رہا یہ ہوں، اگر آپ بکواس کا لفظ اجازت ہے واپس نہیں لیتے تو مجھے مکالمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاہر صاحب سن لیں، کروا رہا ہوں۔ بکواس نہیں سننی میں نے بکواس نہیں سنی، بات سننی ہے۔ اگر یہ بات کرنے کے اہل نہیں ہے اور صرف بکواس کرنی ہے تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ڈنڈا پیر صاحب میوٹ لگا لیں۔ جی بابر صاحب، جتنے لوگ جماعت احمدیہ کے پیاری بات کرتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ سراسر غلط بیانی کرتے ہیں، وہ سراسر، کیا میں اب جھوٹ کہوں گا برا مانیں گے، وہ بات ہی نہیں ہے، تک سے ہی نہیں ہے، کیونکہ بانی جماعت اپنے بیٹے کے لیے پورے اخلاص سے کی گئی لگاتار تڑو تڑ صبح و شام دوپہر 5 ٹائم دعائیں قبول نہیں کروا سکے، تو وہ اگر اتنے خاص بیٹے جس کے نام پہ انہوں نے مسجد بھی بنوا دی، جس کے نام پہ جماعت احمدیہ نے ٹلفرڈ میں ایک اور مسجد بنوا دی، جس سے انہوں نے نسل چلوا دی، جس کے لیے انہوں نے اتنی تدبیریں کی کہ ڈاکٹر ان کی صبح و شام نگہداشت کر رہے تھے، اتنی تدبیریں کی کہ انہوں نے ان کا 2.5 سال کی بچی، اس سے کتنی زیادہ انہوں نے دعائیں کی ہوں گی۔ ماشاءاللہ انہوں نے دعاؤں کے جب انبار لگا دیے، اور ان کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں پوری نہیں ہوئی، تو خلیفہ وقت کی تو کوئی مطلب دعا قبول ہو اس کی گارنٹی پوری کائنات میں کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کیا خلیفہ وقت بانی جماعت سے اوپر ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا خلیفہ وقت کی دعائیں بانی جماعت سے زیادہ مخلص ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا خلیفہ وقت اپنے جماعت کے لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مرزا غلام احمد قادیانی مرزا مبارک سے کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا خلیفہ وقت اپنے جماعت کے لوگوں سے اتنے آگاہ ہیں جتنے مرزا غلام احمد قادیانی مرزا مبارک صاحب کے لیے آگاہ تھے، ہر ٹائم ان کے پاس موجود تھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا خلیفہ وقت مرزا مبارک کی طرح، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب مرزا مبارک کے لیے پریشان تھے اور جتنے اس کے لیے کیئرفل تھے، کیا خلیفہ وقت ایک ایک بچے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ تو میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور یہی ہمارا موقف ہے کہ آپ وہاں سے پکڑ لیں یا یہاں سے پکڑ لیں، یہ خدائی کام خدا کی طرف رہنے دیں۔ ان باتوں کو سمجھیں کہ دعائیں کسی کی قبول ہوتی ہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں۔ خلیفہ وقت کے پاس کوئی فائبر آپٹک نہیں ہے، کسی شخص کے پاس بھی ہو سکتا ہے اللہ ان کی بہت ساری دعائیں قبول کر لے، ہو سکتا ہے کوئی بھی قبول نہ کرے۔ اس نیت سے کسی شخص کو اس کائنات میں، اب میں ان کا نام نہیں لے رہا، سمجھتے تسی گئے ہی ہوگے، اس نیت بھائی سبحان اللہ جی، کیا بات ہے، زبردست، ماشاءاللہ لاسٹ جملہ ماشاءاللہ۔ میں ڈنڈا پیر کا کہہ دیتا ہوں، اس نیت سے اگر کوئی شخص ڈنڈا پیر کو بھی کہتا ہے کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کریں اور اس کی دعا قبول ہوگی، تو اس کا اعتقاد اپنی کی گئی ہوئی دعا پر اور اللہ کے ساتھ رابطے پر ہرگز نہیں ہے، ڈنڈا پیر کے رابطے پر ہے، اور اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو گناہگار کی معافی زیادہ پسند کرتا ہے کہ یہ میری راہ پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے، تو کیا ہم اللہ سے اپنے اخلاص کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے مانگیں گے تو اللہ ہماری قبول نہیں کرے گا اور ڈنڈا پیر کی کرے گا؟ اللہ ہو سکتا ہے میری واقعی نہ کرے اور میرے دوست کی کر لے، لیکن گارنٹی کل کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ جزاک اللہ۔ جی آپ کا پوائنٹ جو ہے ویل اسٹیبلشڈ ہے۔ اچھا ٹھیک، ویل اسٹیبلش ہو گیا، جزاک اللہ۔ طاہر صاحب ایک سیکنڈ گالتے کرن دیو نا سرکار، نہیں ایک منٹ سر مجھے گالتے ان کا کرن دیو نا جواب تو سر، سر تو انہوں نے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا۔ نہیں انہوں نے جو بات کی ہے مجھے اس کا رسپانس دینا بہت ضروری ہے۔ نہیں سر تو ضروری ہے، 2 منٹ بہت ضروری ہے، سن لو میری گل نا، مہربانی کرو سانو بھی بولن دیو۔ آپ کا بات کیا نام ہے بابر بھائی، واز ویلڈ پوائنٹ، اسٹیبلش پوائنٹ، ٹھیک ہو گیا۔ سیکر بھائی آپ کی بات تو کرنے دینا پھر۔ سر رسپونڈ آپ نے کرنا ہے سیکر صاحب کا، انہوں نے سوال نہیں کیا۔ یہ جو آپ بات کی ہے کہ انہوں نے آپ سے نہیں، انہوں نے آپ سے سوال ہی نہیں کیا۔ آپ اب بات جواب آپ کو پتا ہے کتنا اس میں سکم ہے، اتنا کھوکھلا، اور انہوں نے آپ سے سوال آپ کا سیکر صاحب سے ہو رہا ہے، کائنڈلی ان کے ساتھ جاری رکھیں۔ یہ اعتراض انہوں نے مرزا صاحب پر کیا ہے، جو میرے لیے آقا و مولا ہیں۔ سر آپ کے مولا کو وہ مشرک کہہ رہے ہیں ادھر، وہ زیادہ ضروری ہے۔ میں نے کسی سے کوئی ادھر بات کریں، جی سیکر صاحب کنٹینیو کریں۔ لیکن ان کو بھی بات، اچھا آپ اس میں
मोतरज क्यों है कि मैं उनका जवाब ना आपको दूं? गलत क्योंकि सर ये छोटी बात है, उधर वो मुशरिक साबित हो रहे हैं, नहीं उधर नहीं बात तो कर रहे हैं। आप फिर आप वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो आप मुझे बात नहीं मैं करने दे इस रहे। वजह से कि आप खेड़ा डाल रहे हैं, आपके नहीं साथ नहीं जो नहीं बात नहीं हो नहीं, रही है आपको उसको ये कंप्लीट पता है करें। कि इन्होंने जो बात जी से की है के वो साथ नहायत नामाकूल की है, वो कर और लेते हैं ये उसको, गुस्ताखी जो टॉपिक एंड ये लगा हुआ है, अंबिया पहले उसको पर एंड लगाएं। और जी से के औलिया साथ पर गुस्ताखी कर रहे हैं। ये आप उन्हें वाह कर रहे हैं, वैलिड पॉइंट कर रहे हैं। अब मेरी 2 मिनट मुझे दीजिएगा और बात सुन लीजिएगा। अच्छा पहले ये बताएं कि मैंने आप पे एतराज किया है कोई? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस पर आप पहले एतराज किया। बताएं क्या एतराज हाँ, किया? अब सुन लें। अगर दुआ आपने ये कहा कि मिर्जा साहब की दुआएं कबूल नहीं हुई, मैंने आप ये मुझे ये एतराज बताएं। किया? अच्छा, बात मैंने आपकी नहीं बात में ताहिर नहीं भाई आप बोला, ज्यादती नहीं करें, मैंने आपकी ये बात एतराज ने किया मैं नहीं बोला। मेरी बात नहीं, आप लेकिन आप जरा देखें, खामोशी आप से मुझे सुन लें। कटहरे में ले आए हैं, मैंने तो आपके ऊपर कोई एतराज किया ही नहीं, मैं तो एतराज आपने नहीं बात की, मिर्जा साहब पर एतराज किया कि उनकी दुआ नहीं एतराज कबूल किया हो रही है। प्यारे दोस्त बात अच्छा सुननी नहीं है बात है। सर मैंने सुननी, आप मुझे कटहरे आपकी में लाए हैं, बात पहले की है, मैं मैंने तो ये खामोशी पूछूं कि से मुझे सुनी क्यों है। लाए हैं, बात और समझे? आप सुन तो लेना, अच्छा आपका एक जो एक एक रिस्पॉन्ड ये है, बात समझे आप, और मुझे आप सुन तो लेना, आप सुनने की आप भी मेरी हिम्मत करें ना। बात पे बात आपके हर पासा जो है ना वो लूस ना पड़ा तो बात है ना। सर मैं कह रहा हूँ आप आप पहले बात तो स्टेप सुन लें। पुट करके आपने दिखाएं, इतनी मुझ पे बड़ी एतराज आपने गुस्ताखी कैसे की किया? है। आप पहला आपने स्टेप रसूल नहीं ले अकरम सकते। सल्लल्लाहु अलैहि मैंने वसल्लम एतराज और किया ही नहीं है, आप आपने बयान कर रसूल रहे हैं। करीम सल्लल्लाहु आपको अलैहि समझ क्यों नहीं आ वसल्लम रही पर ताहिर एतराज साहब? किया है। ताहिर साहब बात सुने, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैंने तो एतराज किया ही आपने, नहीं। आपको अंदाजा नहीं। आप 2 मिनट अब खामोशी से अच्छा मेरा जी, भी जवाब सुन लें। एक सेकंड जी बाबर साहब, एतराज क्या किया? नहीं आप मैंने बाबर बाबर साहब साहब, आपकी पूरी बाबर बात साहब मुझे आपने बगैर नहीं कर इंटरप्ट रहे। किए हुए सुनी देखें है। जी, ये देखें आप जी गलत जवाब बयानी भी क्वेश्चन, तो कर सुन रहे लें। हैं। बाबर मैंने साहब इन का पे क्वेश्चन एतराज ये किया है, ही नहीं। या तो अब उनकी बात दुआएं सुनने कबूल की हुई हिम्मत, है या दुआ कबूल नहीं हुई। ताहिर साहब इसका जवाब दे दें बस। मैंने तो एतराज किया ही नहीं है, मेरे पे हम ही कह रहे हैं एतराज किया। ये वो मसला कह रहे है, हैं मैं मुझे इनके क्यों साथ एग्री हूँ, मैंने आपसे एग्री किया, आप मुझे कह रहे हैं मैंने एतराज किया। आप जो है वो गुस्से में इतना और पता नहीं किस चीज में नहीं इतना, वो नहीं आपके साथ एग्री हैं। तो ताहिर आपके साहब पॉइंट को उन्होंने आप आगे लेके गए, घंटा आपने मैं सुना ही भी नहीं। करें, आप इनकी मुझे बात ये से ना कहें कि एग्री बाबर हूँ। ने और एतराज जिस किया। तरह ये एग्री है ना, देखें बाज दफा हम एतराज करते हैं और ये भूल जाते हैं और सर कि जी मैंने उसकी, एतराज किया ही और नहीं अल्लाह के यार बंदे। बोलने की, आपको सुनने तो की आप मेरे आपकी पे अच्छा हिम्मत नहीं है। लगा ताहिर रहे साहब ये चलो बताएं ठीक कि है, उनकी आप दुआएं अपनी बात कबूल हुई करें। फिर नहीं? मैं ताहिर साहब जब भी जाने चले, लगा इसको था, फिर मुकाए ना स्पीकर साहब, साहब ने नहीं नहीं, रोका था। इसको अगर खत्म आपने करते दूसरे हैं। को बात नहीं नहीं नहीं, करनी देनी और खत्म अपनी करें ना, नहीं इधर बकवास जारी बोलतान रखनी लगा है तो रहे हैं। तकरीर नहीं ना, ये बताएं उनकी दुआएं कबूल हुई कि नहीं चलिए हुई? नहीं देखिए बात सीधी सी ये है कि जब ये खुद सवाल पे सवाल करते हैं तो इनको 2 मिनट मैंने किया तो कैसे गए? बात ये है मैंने तो एतराज किया ही नहीं। मैंने कब एतराज किया? मैंने कोई एतराज किया? ओ भाई जी सिंपल बात है, दुआएं मुझे ये अगर बताएं की जी, हैं मिर्जा कि नहीं मुबारक की। साहब क्या 2, 2.5, 3 हफ्ते महीने बाद फोत नहीं हुए? हो गए। इसमें एतराज कहाँ है? इन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने ढेर सारी दुआएं की, मैंने भी कहा ढेर सारी दुआएं की। इन्होंने कहा जनाब वो उन्होंने बेटे के लिए खास किया, तदबीरें भी की, दुआएं भी की, मैंने भी यही कहा। अब वो नहीं बच सके, इसमें एतराज कहाँ है? मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं, बोहतान लगा रहे हैं कि भाई आपने एतराज किया? ओ भाई मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ और मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मेरे दोस्त पॉइंट उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि जान बचाने के लिए तदबीर का अमल, इस तरह तो कोई भी मुशरक कब्र पुजने वाला उसको जाके बालों से घसीट के उठाए, ऐथे क्यों बैठा हो, कहेगा मेरी बेटी मर चली है, मेरा पुत्र मर चला, दुआ तो मैं अल्लाह से ही कर रहा हूं। ये बंदा कनेक्टेड है, फिर क्या कहेंगे? वो कहेगा मैं तो तदबीर कर रहा हूं, हॉस्पिटल जाना छोड़ दूं, है तवीज बांधना छोड़ दूं, थूक वाला शहद चाटना छोड़ दूं, मुसल्ले रगड़ना छोड़ दूं, तदबीर भी ना करूं, जहर भी खा ला, फिर ਗੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈ ਤੂੰ ਤਦਬੀਰ ਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਚ ਵੱਜੇਗਾ तो सीधा ही गूं खा। मुझे ये बताएं कि अगर लिमिट ही कोई नहीं है, खौफे खुदा ही कोई नहीं है, कौन सा मुशरक है जो खुशी में जा रहा होता है? आम तौर पे पूरी दुनिया में मशहूर है कि जब डैश लगी वो तो न्याज लगी। भाई जी बात ये है कि जब परेशानी आती है तो याद आता है मुशरिकों को ये सारा कुछ। खुशी में कभी कोई गया? जब आप पर परेशानी आए और आप अपनी लिमिट्स ही भूल जाएं, आप कहें कि यार मैं तो ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, जब लिमिट्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं और आप क्रॉस करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बैठ के सुने? सवाल आपको करना आते, हमें नहीं आते। मैंने एतराज ही नहीं किया, आप बोहतान लगा के जाएं तो जाएं कहाँ?
ਇਹ ਲੜ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਟਣ ਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਹਵਾ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। वो ऑलरेडी आपने कर दी हैं, दोनों हवा में ही कर दी हैं। 1 मिनट ठहरे, मैं काफ़ी देर से अब वो चले गए हैं, यहाँ से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। वो उनकी तशरीफ़ के टोकरे के ऊपर वो ठुड्डा पड़ना था तो उन्होंने जाना था, वरना ये रगे रहना था इन्होंने मच मच करने के लिए ऐसे। एनीवे भाई, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन आपके सामने हुई है, इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए बड़े अच्छे तरीके से कि जो लोग पीरों के पास जाके और गलत कारियाँ करवा के अपने आप को बच्चे दिलवा लेते हैं, ये भी मजबूरी के आलम में होता है। ये बाबर सही बात कह रहा है। कौन जाता है अपनी जेब से पैसे निकाल के जो है वो ऐसे उड़ाता है? ये तभी होता है जब कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। शाह साहब, मैं आपको दिखाता हूँ। आपके अंदर जुर्रत है कि कोई बंदा जिसकी छोटी बच्ची 1.5-2 साल की हालत खराब है, कोई बड़ा मसला है, वो किसी पीर के पास चला गया, आपके मुंह पे वो बात मारे मैं तदबीर कर रहा हूँ, आप उसे कह सकते हैं ये शिरक कर रहा है? लानत भेजूंगा मैं उसके उस शक्ल पे, उसे कहूंगा खबीस के बच्चे, तू देख तू कर क्या रहा है। इसका मतलब है कि आप तदबीर के लिए फिर जादू भी करा सकते हैं। तो सर जी, तो मैं बता रहा हूँ नहीं है तो फिर जादू करवाओ, जाओ जादू करवाओ। इनके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं। देखें बाबर भाई, कितनी मजेदार बात है कि आप एक लड़की से प्यार करते हैं, उसकी हो गई शादी कहीं और, अब आप जाके अल्लाह से दुआएं भी कर रहे हैं और साथ आप तदबीर के लिए जादू भी करवा रहे हैं कि या अल्लाह उसका हस्बैंड मर जाए, ठीक है, या अल्लाह उसका हस्बैंड मर जाए और मैं उससे शादी कर लूं, ठीक है। वाह भाई, तेरी तदबीरा दे सदके, ये है तदबीरें तुम्हारी, है कबर पुजे, ये तदबीरें तुम्हारी। देखें, मेरी बात सुने शाह साहब, मेरी बात सुने। जब आपने दुआ कर ही ली, इतनी भरमार दुआ कर ली, हो गई, आपने दुनियावी तदबीर भी कर ली, ठीक है, आपके पास डॉक्टर साहब मौजूद हैं, ठीक है। अब आपने ये तीसरा काम भी डाल दिया, मैं कहूँगा तो फिर दुख होगा। आपका एतकाद कहाँ पे है? आपका ईमान किस चीज़ पे है? कहना तो बड़ा आसान है, दुआ पे, फिर तो यार भाई इसका एक पहलू अभी दुनिया को जो आपने नहीं बताया, इत्काद खत्म हो गया, अपने आप को नबी का दावेदार है, नबी, मैं नबी हूँ जी, और जी ख्वाब किसी और की औरत को ख्वाब आया, वो पेश हो रहा है, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, ये है जी नबी का इत्काद। फिटे मुंह भाई ताडे जी। अच्छा, आगे हैं जी, सुने, मरा क्यों है बच्चा, बच्चे मरते क्यों थे? सवाल ये है, सवाल ये था कि बच्चे मरते इसलिए थे कि मुझे खुदा ताला ने इल्हाम किया है कि एक मुबारक बच्चा मिलेगा तुझे, मुस्लिम मऊद होगा, वो दुनिया की तकदीर बदल देगा वो तेरे बाद। इस बेस पे बच्चे मरते थे। ये नहीं पता ताहिर अमजद साहब को कि जिसके बारे में पेशन गोई की मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, वो बच्चा मर गया। एक छोटी सी बात, जिसके बारे में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने पेशन गोई की कि वो बच्चा मुस्लिम मऊद होगा, वो बच्चा बचा ही नहीं, वो बच्चा मर गया, ठीक है। ये शैतानी सहारे कि जी वो फलानी, उसको वो ख्वाब भी आप नहीं आया कि इस तरह करने से होगा, किससे दूसरे बंदे ਨੂੰ ख्वाब आ रहे हैं, ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਹੈ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ਾਈਓ, ਡੁੱਬ ਮਰੋ, ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਹੁਣ। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, ताहिर अमजद, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हो जो असलाफ के मदफन तुम हो। क्या हो तुम भाई, ठीक है। तो ये वो लोग हैं भाई, ये इन्होंने मदफन बेच डाले हैं अपने असलाफ के। ये आके कबर पुजे, कबर फरोश हमें बताएंगे इस्लाम क्या है? शिरक ये नहीं है, शिरक वो है। और यार जो बंदा जाके कबर पर सजदे कर रहा है, जिसे ये लोग कबर पूजा कहते हैं, कभी उससे पूछे तो सही कि क्या वो कबर की इबादत करने के लिए सजदा कर रहा है उसके सामने? वहां पर फौरी उंगली उठ जाएगी, देखा शिरक कर दिया, कबर पूजे हैं ये हैं, ये मुसलमान कब्रों की पूजा करते हैं, ये कब्र ये करते हैं वो करते हैं, अपनी पूजा नजर नहीं आ रही थानू। शाह जी ये देखे कि आम इंसान नहीं है, ये वक्त का नबी कर रहा है,
یہ دیکھیں آپ حکم اور عدل کر رہا ہے. جی یہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ذل ہوں، میں بروز ہوں، میں اکمل ہوں، میرے ذریعے سے اسلام کی وہ اشاعت